Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। Guys, this is गोपाल बाबूर। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 55 for chapter 1 that is partnership final accounts for bookkeeping and accountancy of standard 12 का सम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं और फुल फ्लेज सम हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ करंट अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बताया था। अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके विजिट कर सकते हो और यू कैन विजिट माय प्लेलिस्ट और यहाँ पे ऊपर आई बटन है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हो। करंट अकाउंट पहले लर्न करो क्या होता है, उसको बनाते कैसे है, एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो कंटिन्यूसली टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व करंट अकाउंट सम विद रिगार्डिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स करंट एंड बैलेंस शीट कैसे बना के और उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 55 ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 55। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप भी टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो एंड कीप अ पेंसिल रेडी विथ यू, क्योंकि हम लोग मार्किंग करने वाले हैं। एंड रिमेंबर दिस इज द लेंथी सम, तो बहुत बड़ा सम है, तो आपको ध्यान देना है सो दैट यू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि करंट अकाउंट का सम आएगा तो कैसे करना है। डोंट वरी गाइस, द सम इज सिमिलर टू द कैपिटल अकाउंट, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में और उसके पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया। आपको सिर्फ वीडियो और यहाँ प्लेलिस्ट विजिट करके देखना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2। From the following trial balance of Mr. Mitesh and Mangesh, these are the two partners you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on डेट डेट। तो हम लोग को बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाने बोला है, मतलब पूरा सम कंप्लीट करने बोला है। बट उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है, फॉर इजी फर्स्ट वी वुड मार्क द एडजस्टमेंट इफेक्ट, जो आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 56 एंड इफेक्ट्स देख लेते हैं सारे एडजस्टमेंट के। सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। अंडरलाइन करके रखो, because the profit sharing ratio is 3:1. Partners are entitled to a commission at 1% each on the gross profit. When you calculate gross profit, then the partners are entitled for the commission. So the effect is partners current account, as this sum is regarding the current account. So all the adjustment regarding to the partners would be done into partners current account. So partners current account on the credit side, I would write down the first effect is on the partners current account credit side, and the next effect is P&L account debit. So when I calculate gross profit, I need to show the two effects of commission, that is gross profit commission के ऊपर जो calculation करेंगे, one is on the current account credit side and one is P&L account debit side. The closing stock is valued at rupees 23,700. The effect of this is, first effect is trading account credit side and balance sheet asset side. This we have done many number of times. Till now you would be very comfortable of giving the effect of closing stock. Next is outstanding expense, audit fee rupees 400 and carriage rupees 600. So audit fees and carriage, which are part of trading and P&L account, the outstanding effect is plus to an expense, add to an expense, and balance sheet liabilities, as outstanding expense is amount payable, so it has to be shown on balance sheet liabilities. Building is to be valued at 46,500, that is less from assets and P&L account debit side. So I would show it less from assets and P&L account debit side. Furniture to be depreciated by 5%. Again, it is to be the effect are same as compared to adjustment number 5. Building to be valued at 46,500, that is less from assets and P&L account debit side. Guys, in this sum, I would say very important part with regarding to the adjustment number 2. तो आप पूरा वीडियो देखिए so that you understand when to calculate adjustment number 2, that is partners commission on gross profit. I would say in a few minutes, till the time, do not fast forward it. See the video, watch the video completely. Provide interest on capital at 2.5% on per annum. The interest on capital has to be given. So the effect are same as per the commission, that is current account credit side. I would write down that is a part of partners current account credit side and P&L account debit side, that is a part of P&L profit and loss account debit side. Goods of rupees 900 were taken by Mangesh for his personal use. So whenever the partner withdraws the goods,
that has to be charged at trading account credit side because the goods are going out of the business, and it is considered as a drawings. When the goods are withdrawn by the partner, it is considered as a drawing. So I would write down on current account debit side because it has to be deducted from the total amount of current account. So I would write down current account debit side, and it is expected that you are writing the same adjustment effect into your textbook. Write off 1000 as a bad debts and maintain RDD at 3% on sundry debtors. तो यहाँ पे हम लोग को bad debts और RDD कैलकुलेट करना है. So that is less from debtors. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप भी शॉर्टकट लिख सकते हो बिकॉज हम लोग को सम टैली करना रहता है. तो यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. लेस फ्रॉम डेटर्स एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट के साइड वी वुड पोस्ट इट आउट. एंड गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखो कुछ एडजस्टमेंट नंबर 2 विल बी डन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 9. तो हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 2 पहले नहीं करेंगे जो करंट अकाउंट क्रेडिट और पीएनएल अकाउंट डेबिट के साइड है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको बाद में ही मिलेगा जब ट्रेडिंग अकाउंट आप क्लोज करोगे तब. So what we would do, we would complete the entire posting, we would complete the entire adjustment, and then we would go on to the adjustment number 2. तो ये बहुत comfortable रहेगा आपको mistakes avoid ऑफ करने के लिए. Otherwise हो सकता है आप if you try to do it adjustment number 2 first, then it might be there might be a chance of doing an error. So remember adjustment number 2 would be done after adjustment number 9. ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं अभी ट्रायल बैलेंस के मार्किंग. ये क्विकली नोट डाउन कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक के अंदर. टिल द टाइम गाइस आप नोट डाउन कर रहे हो तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हो, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर द वीडियो इज अपलोडेड ऑन द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की. सो गाइस आप लोग ने नोट डाउन कर दिया रहेगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट इफेक्ट. तो ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस जिसका हम लोग को एडजस्टमेंट इफेक्ट देने हैं. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. स्टॉक दैट इज ऑन द 1st April 2018 इट इज गिवन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पोस्ट करेंगे. बिल्डिंग इट इज एन असेट्स, इस पे ऊपर एडजस्टमेंट है तो टिक करके रखिए. कैरेज दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड कंसिडर हुआ है, अगर आउटवर्ड होता तो वो लोग लिख के देते हैं एंड देन वी हैव टू पोस्ट इट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बट यहाँ पे सिर्फ कैरेज लिखा है. दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग इनटू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इस पे भी एडजस्टमेंट है. फैक्ट्री इंश्योरेंस दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, यू आल्सो हैव टू राइट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. पोस्टेज पीएनएल अकाउंट डेबिट. बिल रिसीवेबल assets, debtors, assets. Return inward, this is return inward is nothing but sales return, तो this is less from sales, opposite side रहता है हमेशा याद रखो. Purchases trading account debit side. Audit fees PNL account debit, I would write down in PNL account debit. Loose tool assets, ऑडिट फीस पे भी एडजस्टमेंट था, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, तो टिक करके रखो. हमेशा ये हैबिट रखो, जब आप एडजस्टमेंट कर लोगे तो टिक आपको पता चलना चाहिए. टिक का मतलब रहेगा कि वो कॉलम उसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखा जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आई वुड राइट डाउन पोस्ट इट ऑन टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल अकाउंट डेबिट. जनरल एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट. एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल अकाउंट डेबिट. कैश इन एंड कैश एट बैंक एंड बैलेंस, ये दोनों जो बैलेंस है दैट इज अ पार्ट ऑफ असेट्स. कन्वेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट. फर्नीचर दैट इज अ पार्ट ऑफ असेट्स, इस पे भी एडजस्टमेंट है सो पुट अ टिक. सैलरी दैट इज पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट. रेंट रेट एंड टैक्सेस पीएनएल अकाउंट डेबिट. ड्राइंग दिस वुड कम इनटू करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो सॉरी करंट अकाउंट डेबिट साइड आई वुड पोस्ट इट डाउन because it is a part of partners current account debit side. Let's come to the credit balance. Credit balance is a part of liabilities, sales, trading account credit. Capital is a part of direct liabilities. यहाँ पे याद रखो करंट अकाउंट दिया है, तो जब भी करंट अकाउंट देंगे तो हम लोग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दैट इज 150 और 50,000 आई वुड डायरेक्टली राइट डाउन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटीज. अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया रहेगा तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिए जहां पे हम लोग ने करंट अकाउंट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों हम लोग वहां पे लिखते हैं. इट इज अ फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, बट इस क्वेश्चन के अंदर द मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स मेथड, जहां पे कैपिटल अकाउंट हैज टू बी रिटर्न डायरेक्टली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इस सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, सो आई वुड डायरेक्टली पोस्ट टू द लायबिलिटी साइड. बिल्स पेबल इज आल्सो लायबिलिटीज. Return inward is a purchase return, so I would less from purchase. And current account credit balance, ये credit के side दिया, that's the reason I would write down on current account
क्रेडिट साइड। तो ये आप मार्किंग ले लीजिए और आप लिख डाउन और नोट डाउन कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। एंड आफ्टर दिस वी वुड क्विकली प्रिपेयर द फॉर्मेट so that we can post, we can give the adjustment effect, and then we would complete and tally the sum। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट, उसका पोस्टिंग, उसका कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट के इफेक्ट के साथ ये सम हम लोग टैली करेंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद posting of trial balance giving the adjustment effect। So guys, in this question number 2 के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। रिमेंबर प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बड़ा बनाइए क्योंकि लेंथी सम है, सो वी रिक्वायर लॉट ऑफ आइटम्स टू बी रिटर्न ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो आपको कैलकुलेशन चाहिए रहेगा, अगर चाहिए तो आप अलग से पेज में बना सकते हो। देन यू नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट बिकॉज द क्वेश्चन कंटेन्स करंट अकाउंट फॉर मितेश एंड मंगेश, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जैसे कुछ चीजें लिख के रखी है, जैसे कैपिटल अकाउंट लिख के रखा है, करंट अकाउंट लिख के रखा है, बेड डेट्स का फॉर्मूला लिख के रखा है, सेल्स रिटर्न परचेज ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल द थिंग्स लिख के रखा है। तो यहाँ पे 2 कॉलम आएंगे, एक आएगा मितेश का कॉलम, एक आएगा मंगेश का कॉलम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग इट आउट वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग क्या पोस्ट करेंगे, वी वुड स्टार्ट पोस्टिंग विद द ट्रायल बैलेंस। जैसे जैसे मैं पोस्ट करते हुए जाता हूँ, आप भी पोस्ट करते हुए जाओ। आप नोटबुक लेके बैठिए, फॉर्मेटिंग तो आपका रेडी हो चुका रहेगा। सो जैसे आप ट्रायल बैलेंस के अंदर देखोगे, मार्किंग तो आपने की हुई है। सो स्टॉक as on 1st April 2018 is a opening stock would come into trading account debit side। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड डाल दिया 25,000 रुपीज। then you have building I would write down on asset side, so I am writing building 48,500। remember building के ऊपर एडजस्टमेंट है, they are saying कि बिल्डिंग हैज टू बी शोन रुपीज 46,500। आप एडजस्टमेंट देख सकते हो। सो व्हाट आई वुड डू, कभी कभी आपसे ये हो सकता है, दैट्स द रीजन आई एम डूइंग द सेम थिंग व्हाट इट कैन हैपन इन योर एग्जाम। you may try to pass the adjustment less depreciation 2000 because हम लोग को आउटर कॉलम में 46,500 चाहिए और depreciation का अमाउंट 2000 चाहिए। इसका फर्स्ट इफेक्ट है लेस फ्रॉम असेट्स, एंड द सेकंड इफेक्ट आई वुड शो इट ऑन द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। वो थोड़े टाइम के बाद दिखाऊंगा। बट गाइस बहुत जन ऐसे करते हैं, मुझे स्टूडेंट पूछते हैं सर हम लोग एक एक एडजस्टमेंट करके अगर साइमल्टेनियस पोस्ट करते हुए जाएंगे तो चलेगा क्या? जैसे हम लोग ने पहले बिल्डिंग लिखा, उसका एडजस्टमेंट इफेक्ट लिख दिया पीएनएल अकाउंट में। सो आई वुड टेल यू अ स्ट्रिक्ट नो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। पहले पूरा ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग कर लो, फिर एडजस्टमेंट के इफेक्ट दे दो। और जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में किया, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपका टाइम कैसे वेस्ट होगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जरूरत नहीं है सेकंड इफेक्ट देने के लिए, हम बाद में दे देंगे क्योंकि फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन इफेक्ट देना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कैरेज इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो आई वुड राइट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड, यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट इज फैक्ट्री इंश्योरेंस इज 2700 trading account debit side। Postage I would write down, postage is written on the P&L account debit side, so I would write down postage rupees 1600 in the outer column. You can also write down. Next is bill receivable is a part of asset side, so I am writing bill receivable on asset side। यहाँ पे आप देख सकते हो bill receivable 13,700 in the outer column डायरेक्टली लिख दिया है। Then you have debtors, तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो व्हाट आई वुड डू, डेटर्स का अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 52,200, एंड आई वुड लीव सर्टेन लाइंस 3 to 4 लाइंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेड डेट्स एंड आरडीडी। नेक्स्ट आई वुड मूव ऑन टू रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोग ने भी लिखा हुआ रहेगा, आपको सिर्फ अमाउंट डालना है रुपीज 1600। Then you have purchase is written in the inner column, यहाँ पे 68,900 लिख दिया। यहाँ पे purchase return के लिए भी जगह छोड़ी है, तो आप भी जगह छोड़ सकते हो। Next is audit fees, so I would write down P&L account debit side audit fees rupees 1800 in an inner column because it has an adjustment over it. Loose tools are written on the asset side because it is an asset, so I am writing loose tool as a part of asset side. Manufacturing expense is a part of trading account debit side, so I am writing trading account debit के side manufacturing expense 1820 is an amount in an outer column. Next I would write down electricity charges is a part of P&L account debit side, so I would post it to P&L account debit side.
देन यू हैव जर्नल एक्सपेंस, ये भी P&L अकाउंट डेबिट में जाएगा, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3400 in an outer column. Next I have export duty. Export duty is a part of P&L account debit side, so I have posted to P&L account debit side on in the outer column rupees 1000. Next is cash in hand and bank balance, that are both the part of assets, so I can post it simultaneously, यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो. रिमेंबर गाइस, ऊपर फिक्स असेट्स आते हैं, नीचे करंट असेट्स आते हैं बैलेंस शीट में, ये मैंने आपको बताया हुआ है. बट गलती से अगर बाय चांस आप जैसे फिक्स असेट्स लिखने के बाद करंट असेट्स लिख देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वैलिड इनफ है, कोई रॉन्ग यहाँ पे नहीं देगा, आपको मार्क्स मिलेंगे. बट जस्ट फॉर मैटर ऑफ कन्वीनियंस हम लोग ये करते हैं. बट ये सब में मैंने जानबूझ के करंट असेट्स ऊपर लिखा है और फिक्स असेट्स नीचे में लिख रहा हूँ कुछ कुछ, सो दैट यू आर कंफर्टेबल, यू डोंट गेट स्कैर्ड एंड यू अंडरस्टैंड कि हम लोग कहीं पे भी लिखे हमारा अमाउंट अगर राइट है तो मार्क्स मिलेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट इज कैश इन हैंड, विच आई वुड राइट डाउन लूज टूल्स के नीचे कैश in hand rupees 75,000. Then I would write down bank balance. Bank balance is 29,000 in the outer column. I am writing it down. Conveyance is a part of P&L account debit side. I am writing on the P&L account debit side 4,100 in an outer column. You can check it out कि 4,100 मैंने लिखा है outer column में. Next is furniture. Furniture के ऊपर adjustment है, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा फर्नीचर रुपीज 64,000 बिकॉज वी हैव टू डेप्रिशिएट फर्नीचर, देयर इज एन एडजस्टमेंट एट सैलरी. देन वी हैव टू राइट डाउन ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी रुपीज 2,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आपको भी लिखना है, वहाँ पे आउटर कॉलम में लिख दो. देन वी हैव रेंट रेट एंड taxes, that is a part of P&L account debit side. I'm posting to P&L account debit side rupees 3,700. Guys, आप प्लीज कुछ मिस हो जा रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, जहां से आप मिस हो गया है आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखो, एंड यस बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन. So let's move on to the next part, that is drawing Mitesh and Mangesh. दैट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेबिट साइड, वो हम लोग ने मार्किंग की हुई है, आप लोग ने भी की हुई है. तो मितेश के कॉलम में 1200 आ गया एंड मंगेश के कॉलम में 2200 मैंने लिख दिया. तो डेबिट का पोस्टिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस के डेबिट का पोस्टिंग हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड इट कंटेन्स फर्स्ट आइटम इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. रिमेंबर यहाँ पे ऊपर कैपिटल और करंट अकाउंट के लिए मैंने जगह छोड़ी है, तो क्रेडिटर्स आई वुड राइट डाउन समवेयर इन बिटवीन, सो आई एम राइटिंग इट आउट हियर. Creditors rupees 38,000. You can also post it out. Sales is rupees 1,75,000. I would write down in an inner column 1,75,000. So from 1,75,000, I would minus 1,600. I am getting a total of 1,73,400 in the outer column. तुरंत आप टोटल ले लो, आप वेट मत करो. अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि इसके बाद सेल्स या परचेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं ले सकता हूँ, तो आप यहाँ पे माइनस करके टोटल लिख सकते हो आउटर कॉलम में, जैसे 1,73,400 आपको दिखाई दे रहा है. Next is capital account. Remember, this is a fixed method. In the fixed capital method, the capital account of the partner remains the same throughout the year unless and until it brings an additional capital. So we do not need to change. हम लोग को जो capital account दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे मितेश 1,50,000 एंड मंगेश रुपीज 50,000 लायबिलिटी के साइड, और उसका टोटल ले लेंगे रुपीज 2 लाख इन द आउटर कॉलम. इसमें जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा हम करंट अकाउंट के अंदर करेंगे. नेट प्रॉफिट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एडिशनल ड्राइंग हो गया, वो सारा का सारा एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट के अंदर करेंगे. नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि सर अगर करंट अकाउंट नहीं दिया रहेगा, तो सिमिलर वे पे हम ये जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे लिखने के बदले उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, और ये पार्टनर्स करंट के बदले हम लोग बनाते पार्टनर्स कैपिटल. ओनली दिस मच इफ यू रिमेंबर, आई कैन बेट यू कैन स्कोर आउट ऑफ इन योर फाइनल अकाउंट्स. Let's move on to the next item, that is outstanding salary. Outstanding salary is a part of liability, so I'm writing it out. Outstanding salary rupees 2,000. This is not an adjustment because this is given in your trial balance by default है. मैं यहाँ पे सैलरी पे ऐड नहीं कर रहा हूँ. अगर ये एडजस्टमेंट होता तो मैं इसको सैलरी पे प्लस करता, देन आई वुड हैव रिटन द सेकंड इफेक्ट ओवर हियर. बट रिमेंबर, इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, दिस इज गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस. तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी के साइड. Next is bills payable. Bills payable I would write down on the liability side below the creditors. The bills payable rupees 18,000 in an outer column. Next we have return outward. Return outward is a purchase return, so I would minus it from purchase, and in the outer
column, I'm getting a total of 67,100. So the total purchase for the company is 67,100. Now I have a total of current account, that is Mitesh ka 3,000, Mangesh ka 2,000. So this I would post it on the partners current account credit side, because credit balance दिया है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के साइड दिया है. बट अगर ये चीज डेबिट के साइड देते तो मैं बैलेंस के ब्रॉड डाउन कहाँ लिखता, डेबिट के साइड. सो रिमेंबर गाइस, अगर क्रेडिट के साइड बैलेंस दिया है तो ब्रॉड डाउन कौन से साइड आएगा, डेबिट के साइड. जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप भी नोट डाउन करते हुए जाओ. मितेश का है 3,000 एंड मंगेश का है 2,000. तो मितेश एंड मंगेश के कॉलम में अकॉर्डिंगली हम 3,000 और 2,000 पोस्ट करेंगे. सो गाइज, ये पूरा जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है, ये आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया. नाउ व्हाट वी वुड डू, वी वुड हैव अ इफेक्ट फॉर द एडजस्टमेंट. रिमेंबर गाइज, इस क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, दैट वी वुड डू इट एट द लास्ट, नॉट एट द फर्स्ट. जहां पे उसका पोजीशन है वहां पे नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आपका कमीशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. रिमेंबर दिस पॉइंट, अदरवाइज ये आप एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. ये तो हम लोग को पीएसआर का इंफॉर्मेशन दिया, वी हैव टू डू नथिंग विद दिस. एडजस्टमेंट नंबर 2 तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं. वी वुड मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700. So the closing stock effect is trading account credit side and balance sheet asset side. तो यहाँ पे हम लोग एक इफेक्ट लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट्स के साइड, एंड दूसरा इफेक्ट लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट्स के साइड. जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 इफेक्ट मार्क करके रखे, आप भी साइमल्टेनियस देखते हुए जाओ, नोट डाउन करते हुए जाओ अपने नोटबुक के अंदर. Let's move on to the next adjustment, that is adjustment number 4 is outstanding expense audit fee ₹400, carriage ₹600. तो ऑडिट फीस पे हम लोग को 400 प्लस करना है एंड कैरेज पे ₹600 प्लस करना है. सो लेट्स बिगिन विद द एडजस्टमेंट. कैरेज पे आउटस्टैंडिंग ऐड किया, बिकॉज आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या आता है, ऐड टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटीज. तो टोटल इन द आउटर कॉलम, यहाँ पे तुरंत ही आप ले लो, इट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज 2380. एंड ऑडिट फीस का आउटस्टैंडिंग है 400 एंड इन द आउटर कॉलम आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 2200. तो एक ऑडिट फीस यहाँ पे ऐड कर दिया, कैरेज यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर दिया. अब उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में. तो आप ऐड टू एक्सपेंस कर रहे हो ट्रेडिंग डेबिट में, पीएनएल डेबिट में, एंड देन यू आर शोइंग द इफेक्ट ऑन लायबिलिटी साइड. जैसे मैंने आपको ग्रे मार्किंग करके दिखाई है, आपको याद रखना है कि इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा. एंड डोंट वरी, जितने ये रेड कलर के जो मैंने फॉन्ट कलर किए हैं, दैट मीन्स दैट इज एन एडजस्टमेंट. तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैंने पोस्टिंग कहाँ की है. तो ऑडिट फीस 400 मैंने लिख दिया, कैरेज 600 लिख दिया, और सैलरी 2000 ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है. सो टोटल ले लिया आउटर कॉलम में, दैट कम्स टू 3000. सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हो गया. Now let's move on to the adjustment number 5, that is to value building at 46,500. उसका फर्स्ट इफेक्ट तो हम लोग ने किया है, 2000 तो माइनस किया है, बिकॉज 48,000 was the value and you need to get 46,500 in the outer column. So what we have to do, we have to show it the second effect. The second effect is P&L account debit side. आप देखो, हम लोग ने मार्किंग किया भी है. So trading P&L account के डेबिट के साइड, to depreciation on building ₹2,000. The first effect and second effect I have marked in a gray color. सो अकॉर्डिंगली आप भी लिखते हुए जाओ. अगर आपको लग रहा है कि आप स्पीड अप नहीं कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करते करते पूरा सम देखो, नोट डाउन करते हुए जाओ. डोंट वरी, द वीडियोस आर देयर इन माय प्लेलिस्ट, द वीडियोस आर देयर इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको जो सम चाहिए आप देख सकते हो एज पर योर कंफर्ट लेवल. Now let's move on to the furniture to be depreciated by 5%. So what I would do, 64,000 के ऊपर मैं जब 5% कैलकुलेट करूंगा, सिंपल है, 64,000 का 10% is 6,400, उसका आधा is 3,200. तो ऑटोमेटिकली मुझे 5% मिल जाता है. लर्न द ट्रिक्स to calculate the amount in your mind so that it would save a lot of time for you. So less depreciation 5% is 3,200, and in the outer column I would take a total of 60,800. This is the first effect for depreciation on furniture which is there on the asset side. The next effect is on P&L account debit side. Below the depreciation of building के नीचे I would write down, so furniture ₹3,200 and then inner column. So now what I would do, I would add this two and I would get a total in the outer column, that is 5,200. In the outer column I am getting a total of depreciation. Now let's move on to the next adjustment, adjustment number 7, which says provide interest on partners capital at 2.5% per annum.
तो यहाँ पे आप नोट डाउन करो, इंटरेस्ट किस पे देना है, 1,50,000 के मितेश के अमाउंट पे देना है, मंगेश के अमाउंट पे 50,000 के ऊपर देना है। तो सिंपल बात है, हम लोग को इंटरेस्ट कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 2.5। सो 1,50,000 का आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1,50,000 का इफ यू गो ऑन कैलकुलेटिंग 2.5%, तो 1,50,000 इंटू 2.5 अपॉन 100 जब आप करोगे तो आपको मितेश का कैलकुलेशन मिल जाएगा। एंड फॉर मंगेश 50,000 के ऊपर सेम, जब आप 50,000 इंटू 2.5 अपॉन 100 करोगे तो आपको मंगेश का भी कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, आप भी कैलकुलेट करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका आंसर क्या आ रहा है। एंड इफ यू आर रॉन्ग देन आई वुड डेफिनेटली करेक्ट यू, बट आपके सामने मैं सम सॉल्व ही कर रहा हूँ, सो डोंट वरी, आपको आंसर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। सो व्हेन आई कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पार्टनर्स फॉर दिस थिंग, I am getting Mitesh का amount is 3,750. I am writing in the Mitesh column, and Mangesh के column में you would get rupees 1,250. So this is the first effect, that is interest on capital, partners account क्रेडिट के साइड, करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिखूंगा। और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। देखो मैंने यहाँ पे ग्रे कलर का मार्किंग किया है, ऑपोजिट इफेक्ट है, वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट है। Alright, so I would write down to interest on capital Mitesh 3,750, and for Mangesh I am getting a total of 1,250. So in the outer column I am getting total of 5,000. So total interest charge for the firm is 5,000. Mitesh का 3,750, Mangesh का 1,250. Guys, do not fast forward it because हो सकता है बहुत सारी चीजें आपसे स्किप हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इज बेटर यू वॉच द वीडियो कंटिन्यूसली, पूरा वीडियो देखो तब जाके आपको समझेगा। इट हार्डली टेक्स अराउंड हाफ एन आवर टू वॉच द वीडियो, उससे भी कम टाइम में मेरा सम कंप्लीट हो जाता है। सो डोंट वरी गाइस, मैं ट्राई करता हूँ सम को शॉर्ट, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ, सो दैट यू आर आपका टाइम बचे, आपको समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। So now let's move on to the next adjustment. Goods of rupees 900 was taken by Mangesh for personal use. जब भी गुड्स विड्रॉन होते हैं, that is to be shown on the ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड, तो बाय गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश, ब्रैकेट में मैंने ड्राइंग्स लिखा है सो दैट यू रिमेंबर कि ये ड्राइंग का इफेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिख दिया। एंड वी आर हैविंग अ एडिशनल ड्राइंग, सो फॉर मंगेश के कॉलम में आई एम राइटिंग रुपीज 9,000, ये मंगेश का कॉलम है, रुपीज 900 यहाँ पे लिख दिया है। For Mitesh, there is no additional drawing. So what I am doing, I am putting a dash out of it. आप भी dash लिख सकते हो यहाँ, तो फिर आप छोड़ दो, that is absolutely fine enough. And the 9 adjustment says write off rupees 1,000 as a bad debts and maintain RDD as a part of 3% on sundry debtors. तो पहले हम लोग bad debts माइनस करेंगे 52,200 से, तो bad debts जब माइनस किया तो I am getting a total of, फर्दर बैड डेट्स माइनस किया तो 1,000 मुझे बैड डेट्स मिला। तो मैंने टोटल ये 52,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो यू वुड गेट 51,200। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सो न्यू आरडीडी कैलकुलेट किया। सो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वेदर माय अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन इज राइट फॉर आरडीडी। जो मैंने कैलकुलेट किया दैट इज 1536। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और यू कैन फॉलो मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट, दैट इज ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं सब जगह एक्टिव हूँ। आई वुड सॉल्व योर डाउट, आई वुड आंसर इट डेफिनेटली बैक टू यू। सो मैंने यहाँ पे डेटर्स का अमाउंट जब आउटर कॉलम में ले लिया, 52,000 में से ये माइनस किया तो आई गॉट 51,200, एंड फ्रॉम 51,200 आई कैलकुलेटेड 3%, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 1536। सो व्हेन आई माइनस डेट आई एम गेटिंग 49,664 the outer column total for the debtors. Now this is the first effect for bad debts and RDD. The second effect lies at P&L account debit के side. So for new bad debts, यहाँ पे देखो further bad debts है, further bad debts का मतलब है यहाँ पे new bad debts, मैंने जानबूझ के दोनों नाम रखा हुआ है so that you don't get confused whether further bad debts or new bad debts are both the difference. No, it is one and the same. आप 1,000 लिख दो, एड न्यू बैड डेट्स करके, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। बैड डेट्स दिस इज ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो आपको ट्रायल बैलेंस मिलेंगे, सेकेंड एंड थर्ड यू वुड गेट इट फ्रॉम डेटर्स अमाउंट दैट इज ऑन एडजस्टमेंट पार्ट। तो मैंने 1,000 यहाँ पे लिख दिया,
Next amount is 1536. I would write down out in the new RDD. अब ये 0 है, ये भी कुछ नहीं है, तो I would put a 0 and I would take a total in the outer column and my total for bad debts is 2536. इसका दोनों का टोटल, ये दोनों ऐड करके मैं आउटर कॉलम में हम लोग को लिखना है 2536. So guys, this completes the adjustment, but remember one adjustment is left out, that is adjustment number 2. वो कब मिलेगा हम लोग को? जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तब. सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट. सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल एंड ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल ले लेंगे. सो इन दिस सम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट इज बिगर, दैट इज आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 1,98,000. आप भी कैलकुलेट करो. सेम टोटल हम ऑन द डेबिट साइड लिखेंगे and from 1,98,000 I would minus, I would deduct all this amount in the outer column जो है, and the balance which I would get is the gross profit, and in this scenario I am getting gross profit of rupees 99,000. तो यहाँ पे जो gross profit आ रहा है इस sum के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, I am getting a total of 99,000. So guys, आप कैलकुलेट करो और यहाँ पे 99,000 आप अपने नोटबुक में लिख के रखो. सिंपली डोंट कॉपी करो, वीडियो में दिया हुआ है, रेडीमेड है, तो आप भी लिख दोगे. नहीं, एग्जाम में वीडियो काम नहीं आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग काम आएगी. तो आप जब अंडरस्टैंडिंग से कैलकुलेशन करोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर बेटर. सो नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2 हम लोग को इफेक्ट देना है. एडजस्टमेंट नंबर 2 सेज पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. मतलब मितेश को भी 1% मिलेगा, मंगेश को भी 1% मिलेगा ऑन 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर. So when I calculated 1,099,000 का 1% is कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है, यहाँ पे 99,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, so I need to multiply 1/100. तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा 1/100 तो सिंपल है, ये 2 0 हट जाएगा पीछे से. So I am getting a total of 990. तो 990 for मितेश and 990 for मंगेश. तो क्या आएगा क्वेश्चन के अंदर? The effect is current account credit side and the effect is on P&L अकाउंट के डेबिट के साइड. सो लेट्स राइट डाउन. सो आई एम राइटिंग इफेक्ट ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हो, टू कमीशन मितेश 990, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके बताया हुआ था 990 आया. फॉर मंगेश आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 990. सो इन द आउटर कॉलम द कमीशन टोटल फॉर द फॉर्म टू बी चार्जेस 1980. ये टोटल हम लोग ने आउटर कॉलम में ले लिया. ऑलराइट गाइस, तो आप भी कैलकुलेशन कर लो एंड यू वुड गेट डेफिनेटली द सेम आंसर. नाउ दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट on the P&L account debit side. The next effect is to be shown on partners current account credit side. So by commission मैं credit के side लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो. मितेश के कॉलम में 990 and मंगेश के कॉलम में भी 990 आप लिख सकते हो. So I think this completes the entire sum. This completes the entire sum of posting with adjustment effect. Now what we have to do, we need to start closing one by one account, as we have already closed trading account and we have found out the gross profit. तो ये gross profit हम लोग कहाँ लिखेंगे? P&L account के credit के साइड लिख देंगे. तो यहाँ पे gross profit brought down आ गया 99,000. Now what we need to do, we need to take a total of ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में. जब ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया तो हम लोग को P&L अकाउंट का क्रेडिट एंड P&L अकाउंट का डेबिट टोटल लेना है. ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पे P&L अकाउंट क्रेडिट बड़ा है, जो यहाँ पे टोटल मिल रहा है 99,000. सेम टोटल हम यहाँ पे 99,000 लिखेंगे और उसमें से ये सारा अमाउंट जो P&L अकाउंट के डेबिट के साइड है वो माइनस कर देंगे. सो व्हेन आई माइनस इट आई एम गेटिंग अ टोटल डिफरेंस ऑफ नेट प्रॉफिट मिल रहा है. तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 63,684. गाइज आप कैलकुलेट करो, आप कमेंट सेक्शन में करो और आप चेक करो कि ये अमाउंट राइट है कि नहीं. डोंट सिंपली कॉपी इट आउट. आई वुड रिपीट दिस थिंग अगेन. आप सिंपली कॉपी मत करो अपने मेरे वीडियो के अंदर से, अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम होगी. यू कैलकुलेट इट आउट, टेक योर टाइम, कैलकुलेट इट आउट. जनरली फाइनल अकाउंट्स का सम 35 to 40 मिनट्स में आपके एग्जाम के टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा. सो नेट प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मितेश एंड मंगेश इन द रेशियो 3:1. तो व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूटेड 3:1 का रेशियो आप भी कैलकुलेट करो. आई रिपीट, डू नॉट कॉपी, सिंपली फ्रॉम द वीडियो यू नीड टू वर्क आउट. आप वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन करो, सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो. मितेश का आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 47,763 एंड मंगेश का आई एम गेटिंग टोटल ऑफ 15,921 बिकॉज 3:1 का रेशियो है.
So 63,684 को when I divide into 3:1 का ratio, then I'm getting a total of 47,763 for Mitesh, and for Mangesh I'm getting 15,921. Now this is the first effect on the P&L account debit side for the net profit. This I need to show it on partners current account. तो यहाँ पे मैं करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड दिखाऊंगा, बिकॉज नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट हम लोग को करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड दिखाना है. अगर नेट लॉस आता तो आई वुड हैव शोन ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड. रिमेंबर दिस गाइस. So I am writing by profit and loss account, I am writing in the bracket net profit. For Mitesh I am getting a total of 47,763. आप लोग ने भी कैलकुलेट किया हुआ है. And Mangesh, you are getting a total of 15,925. Now what? So guys, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मितेश का टोटल लेना है, मंगेश का टोटल लेना है. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने जब मितेश का एंड मंगेश का टोटल ले लिया, सो आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 55,000 फॉर मितेश कॉलम, दैट इज 55,503, and for Mangesh you would be getting a total of 20,161. Same total as per the ledger concept we have to write down on the debit side. तो मैंने 55,503 मंगेश के कॉलम में लिख दिया एंड 20,161 मैंने लिख दिया मंगेश के कॉलम में. So now we would minus this 1200 from Mitesh total and this 2,200 plus 900. जब मैं टोटल करके माइनस करूंगा 20,000 से, so I would definitely get a balance carried down for current account. So to balance carried down मितेश का कितना आएगा, 54,303. You would also get the same total and 17,061 आपको बैलेंस मिलना चाहिए. ये दो बैलेंस आपको मिलना चाहिए करंट अकाउंट का. So now this current account balance has to be written on the liability side. So for Mitesh I am writing 54,303 जो ये टोटल आया है, and for Mangesh I am writing a total of 17,061 जो ये टोटल हम लोग को मिला है. And then when we add this two and then we take the total in the outer column, so the total is 71,364. 71,364 आपको बैलेंस आना चाहिए. जैसे ही आप ये टोटल लोगे और बैलेंस शीट लायबिलिटीज एंड असेट्स के साइड टोटल करोगे, तो यहाँ पे आप देखना कि लायबिलिटीज का टोटल 330,364 आएगा एंड असेट्स का टोटल भी 330,364 ही आना चाहिए. जब ये दोनों इक्वल आएंगे दैट मीन्स यू हैव डन द सम करेक्टली और आपने सारे पोस्टिंग एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन सही किया है. तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हो. And watch the video, keep learning, keep understanding from the video, and click on the bell icon for the next video. Till then, take care, have a good day.